a very important part, important concept. That is we are covering here physical geography. That is the physical geography. And in physical geography, we are taking a very simple concept over here. That is the earth movements. Which topic we are going to discuss today is earth movements. What are earth movements actually? We move like this. I am moving here and here. Like this, earth also moves. For example, I am having this pen in my hand and this pen is moving here and here. And अगर हम इसको assume करें as a earth, तो this earth is also having some movements over it. Inside the earth, movements are taking place, and outside the earth, movements are taking place. I am assuming this pen as a earth over here, but you can't assume it actually, because earth doesn't look like this. It doesn't look like a pen. It looks like it has a geoid shape, that is flattened at the poles and circle at the center, bulge at the center, and it is flattened at the poles. अर्थ का जो मॉडल है वो आप सबको पता है कि ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ. जैसा आपको ग्लोब दिखता है, अर्थ आपको वैसी ही दिखती है. तो अर्थ के अंदर और अर्थ के बाहर, beneath the earth surface and above the earth surface, some movements are taking place. The earth is moving, and what are those movements that are actually taking place beneath the earth surface and above the earth surface? These forces are endogenic forces and exogenic forces. For example, I am giving you one example here. I am sitting still here. मैं यहाँ बैठी हूँ, and somebody is pushing me. That is putting force on me, and then I am moving. Likewise, if earth is moving, means some forces are being applied over that, and then the earth is moving. ये कुछ forces अर्थ के बीच में या अर्थ के बाहर जनरेट हो रही हैं, जिसकी वजह से अर्थ मूव करती है. तो एंडोजेनिक फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो विद इन द अर्थ, अंडर द अर्थ दे टेक प्लेस. एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो आउटसाइड द अर्थ, अर्थ के बाहर से, बीनीथ द अर्थ सरफेस नहीं, अब आउटसाइड ऑफ द अर्थ से अर्थ के ऊपर अप्लाई होती हैं, उन्हें हम एक्सोजेनिक फोर्सेस कहते हैं. अब जो एंडोजेनिक फोर्सेस होती हैं उनको हमने सडन फोर्सेस और डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस में डिवाइड किया है, और जो एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं उनको हमने इरोजनल और डिपोजिशनल में डिवाइड किया है. जो सडन फोर्सेस मीन्स रैपिड फोर्सेस, दे आर एक्चुअली एक्टिंग रैपिडली. They are actually acting rapidly. So see, first is earthquake, second is volcano, and third is landslides. These are three sudden forces. They are acting suddenly. For example, you are taking a balloon and that balloon is filled up with water and you are pressing it. आप इसको pin आपको उसको press कर रहे हैं, and then it will burst. Suddenly the water is coming out. So these are sudden forces. Means earthquake is acting suddenly, volcano is acting suddenly, and landslides are acting suddenly. But these diastrophic forces, they are not acting suddenly. They are slow processes, like building mountains. Means here comes two concepts, that is folding and faulting. Folding and faulting. Here it will come under building mountains, that is folding and faulting. Likewise, if we will talk about exogenic forces, here exogenic forces are that are acting outside of the earth, that is erosional and depositional. Erosion is taking place by rivers, it is taking by wind, it is taking place by sea waves, and then lastly by the glaciers. Means outside forces being taking place, and that is moving that part of the earth. For example, हम एक mountain की example लेते हैं कि एक mountain है और उस mountain के ऊपर से, mountain से river generate हो रही है, river निकल रही है, ठीक है. For example, this is a mountain और यहाँ से river का origin हो रहा है. River is being originated from here. अब ये जो river इस mountain से originate कर रही है, ये अपने साथ साथ erosion करती है. जो भी यहाँ पे पेबल्स हैं, रॉक्स हैं, उनको अपने साथ डेन्यूड करती है, उनको ब्रेक डाउन करती है और यहाँ से गुजरती है और उनको प्लेन्स में लेकर के आती है. ये इरोजनल प्रोसेस वो रिवर कर रही है, ठीक है. तो ये एंडोजेनिक के अंदर नहीं, एक्सोजेनिक में है. टाइम टू टाइम अब ये जो माउंटेन है एक फ्लैटन सरफेस का रूप ले लेगा. तो दीज आर इरोजनल, दिस इज इरोजन एंड इट इज कमिंग अंडर एक्सोजेनिक प्रोसेसेस. किसके अंडर आ रहा है ये? एक्सोजेनिक प्रोसेस के अंडर आ रहा है. तो अब हम एक एक प्रोसेस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे. तो अब जो एंडोजेनिक प्रोसेसेस, जैसे मैंने आपको कहा कि वो फोर्सेस हैं जो अर्थ सरफेस के बीनीथ टेक प्लेस होती हैं. द ग्राउंड वी लिव ऑन इज मूविंग ऑल द टाइम, एज आई टोल्ड यू. द फोर्सेस विद इन द अर्थ दैट कॉज द ग्राउंड टू मूव आर कॉल्ड एंडोजेनिक प्रोसेसेस. वो प्रोसेसेस जो फोर्सेस
विद इन द अर्थ प्लेस टेक प्लेस होती हैं और कॉज करती हैं ग्राउंड को मूव करने में, मीन्स ग्राउंड मूव करता है, उन्हें हम एंडोजेनिक प्रोसेसेस कहते हैं और ये विद इन दी अर्थ टेक्स प्लेस होती हैं। अब ये जो एंडोजेनिक प्रोसेसेस होती हैं ये काम कैसे करती हैं? फॉर एग्जाम्पल वी हैव 2 रॉक्स, हमारे पास 2 रॉक्स हैं। अब एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने लूंगी यहाँ पे कि ये मेरे पास एक पेज है, ठीक है। अब इस पेज को मैं डिवाइड कर रही हूँ, इसको मैं फोल्ड कर रही हूँ, सॉरी, हमने इस पेज को फोल्ड किया, सिंपल। हमने जब इसको फोल्ड किया तो हमारे पास ये इस शेप में सामने आएगा। तब यहां देखेंगे मेरी तरफ, इस तरह से ये मेरे पास सामने आएगा। तो यहां से आपको एक पीस दिख रहा है, वन साइड इज फोल्डिंग अप, वन इज कमिंग डाउन, वन इज फोल्डिंग अप, देन इट इज कमिंग डाउन, देन अप, देन डाउन। यहां से आप सीधी एग्जाम्पल यहां पे आप ले सकते हो फोल्डिंग की, जो मैंने आपको कहा फोल्डिंग और फॉल्टिंग मेन अर्थ मूवमेंट्स हैं जो एंडोजेनिक के अंडर आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फोल्डिंग की एग्जांपल आप ले सकते हो, दीज आर फोल्ड्स, दिस इज फोल्ड नंबर 1 2 3, इट हाउ लुक्स लाइक। अब कौन सी फोर्स है अब ये जो फोल्डिंग क्रिएट कर रही है? ये होता है हॉरिजॉन्टल कंप्रेशनल फोर्स से। फॉर एग्जाम्पल दिस इज प्लेट, दिस इज अर्थ एंड सम कंप्रेशन इज टेकिंग प्लेस, दिस इज pressing the 2 plates together. What is happening? 2 plates are bursting like this. For example, this is flattened. When compression will takes place, compressional force will act, it will go like this. Then the fold will create. इस तरह से fold जो है वो up fold आपके सामने आएगा। अब यहाँ पे आपके सामने आया एक up fold, एक आया down fold। तो बेटा up fold जो है उसको हम कहेंगे anticline और ये जो down fold है उसको हम कहेंगे syncline। यहाँ पे मैं आपको एक पिक्चर से डायरेक्टली समझा सकती हूँ, ये ऐसे, देन अप, देन डाउन, देन अप, देन डाउन, लाइक दिस। अब ये जो मेरे पास आया ये लिम्ब, इसे हम कहते हैं लिम्ब, ये आ जाता है इसका एक्सिस। तो ये जो लिम्ब्स हैं ये अप फोल्ड है और ये बेटा डाउन फोल्ड है, इसको हम क्या कहेंगे? डाउन फोल्ड। और ये आ जाता है बच्चे अप फोल्ड, ठीक है। तो अब ये जो अप फोल्ड है इसको हम कहेंगे एंटीक्लाइन, ये जो डाउन फोल्ड है इसको हम कहेंगे सिंक्लाइन। आई होप ये आपको क्लियर है। तो फोर्स जो इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है, अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोल्डिंग के प्रोसेस के लिए, तो वो हम लिखेंगे कंप्रेशनल फोर्स। क्या लिखेंगे? कंप्रेशनल फोर्स। अब यहाँ से आपको एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा कि ये पिक्चर है जिसमें आपको फोल्ड और फॉल्ट दिख रहा है। फॉल्ट की तरफ हम चलेंगे। अब ज्वाइंट क्या है? 2 प्लेट्स की जो पोर्शन है जो इनको ज्वाइन करता है, दैट इज अ ज्वाइंट। अब उस ज्वाइंट पे कंप्रेशनल फोर्स लगी तो ये फोल्ड बन गया। अब बात आती है कि कंप्रेशनल फोर्स ने फोल्ड बनाया। अब क्वेश्चन आता है कि फॉल्ट कैसे जनरेट हुआ, तो चलेंगे फॉल्ट की तरफ। फॉल्ट इज ए फ्रैक्चर जोन। अब फॉल्ट क्या होगा? फॉल्ट इज बेसिकली अ फ्रैक्चर जोन। अब वो फ्रैक्चर जोन पे टेंशनल फोर्स की वजह से वहां पे क्रैक आ गया। यहाँ पे एक एग्जाम्पल देंगे, जब हमें हेडेक होता है तो हमें क्या होती है, हमारे टेंशन की वजह से हम बोलते हैं हमारा दिमाग फट रहा है या हेडेक हो रही है, दर्द हो रही है हमें। वो एक जो है वो उसने हमारी हेड में एक फ्रैक्चर क्रिएट किया, हेड पे फ्रैक्चर क्रिएट किया। और फोर्स कौन सी रिस्पॉन्सिबल है? टेंशनल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। तो सेम फॉल्टिंग के लिए हमारे पास टेंशनल फोर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। फॉल्ट्स अलो द ब्लॉक्स टू मूव रिलेटेड टू ईच अदर। This movement may occur rapidly in the form of an earthquake or may occur slowly in the form of creep. अब ये earthquake की फॉर्म में एक सडन मूवमेंट भी हो सकती है या क्रीपिंग भी हो सकती है जो स्लोली टेक्स प्लेस होती है। अब नेक्स्ट में हमारे पास आता है एंडोजेनिक फोर्सेज। आई होप इट इज बीइंग क्लियर टू यू ऑल। एंडोजेनिक फोर्सेज में मैंने कहा एंडोजेनिक फोर्सेज आर डिवाइडेड इनटू फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग, दैट इज डिवाइडेड इनटू फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग। अब ये जो हमारे पास लास्ट फोर्स है दैट इज एक्सोजेनिक फोर्सेस, एक्सोजेनिक प्रोसेसेस, दोज प्रोसेसेस व्हिच ऑपरेट ऑन आर क्लोज टू द अर्थ सरफेस ऑफ द अर्थ एंड इन व्हिच इन्वॉल्व्स वेदरिंग। वेदरिंग इज disintegration of rocks in C2. C2 is the static position. Weathering means this is a rock, it is breaking down. Breaking down स्टैटिक पोजीशन है। अब ये जो माउंटेन है ये तो मूव नहीं करेगा, उसी पोजीशन पे रॉक्स की जो ब्रेकडाउन होती है उसे हम एक्सोजेनिक प्रोसेस के अंडर कंसिडर करते हैं। मास मूवमेंट, दिस रॉक इज मूविंग
rock movement. Fluvial is river erosion. Aeolian is wind erosion, glacial erosion, and coastal processes. All these are responsible for the exogenic processes, for the movement of the rock debris from one place to another place. अब इसको हम लास्ट में एक सिंपल से, जैसे कि मैंने आप सबसे पहले कहा कि वी हैव माउंटेन, यहाँ पे मैं इजीली आपको एक्सप्लेन करूंगी कि अगर हम रिवर की स्टेजेस देखें, अगर हमारे पास रिवर है तो रिवर की कुछ स्टेजेस होती हैं, जैसे यूथफुल स्टेज, मैच्योर स्टेज और सेनाइल स्टेज. यूथफुल, मैच्योर एंड सिनाइल स्टेज, ठीक है ना. तो अब हमने इसको यूथफुल में रिवर जो होती है बड़ी एक्टिव होती है, अब रिवर जब यहाँ से जनरेट होती है, निकलती है, तो हमने इसको डिवाइड कर दिया. अब डिवाइड मतलब इसको ब्रेक डाउन कर दिया, तो हिल से ये फ्लैटेंड सरफेस पे आ जाती है. किस पे आ जाती है? फ्लैटेंड में आ जाती है, और धीरे धीरे ये वहाँ पे प्लेन एरियाज क्रिएट लगती है, क्योंकि ये इरोजन से इसका फॉर्मेशन हुआ. इट इज बीइंग इरोडेड, दीज रॉक्स आर बीइंग eroded from time to time. So I hope it is all clear to you all. That is endogenic and the exogenic processes that we have covered under the physical geography of world, and these are basic concepts. अब हमने जो फिजिकल ज्योग्राफी इंडिया, वर्ल्ड या फिर हमने महाराष्ट्र पढ़ना है, उसके अंदर जब हम फिजिकल की बात करेंगे, हिमालयाज की फॉर्मेशन की बात करेंगे, तो माउंटेन्स की फॉर्मेशन की बात करेंगे, वर्ल्ड माउंटेन्स की, हिमालयाज की बात करेंगे, या महाराष्ट्र में जो हमारे पास माउंटेन रेंज है, जब हम उनकी बात करेंगे तो उसके पीछे फॉर्मेशन की जो है क्या प्रोसेस है, प्लेन्स की क्या फॉर्मेशन है, प्रोसेस है, कोस्टल एरियाज की कैसे है. तो हमारे पास जब तक फिजिकल ज्योग्राफी में इन बेसिक कंसेप्ट्स का आइडिया नहीं होगा, तब तक हम इस पोर्शन को कवर नहीं कर सकते. तो डियर, अब मुझे लगता है कि आप सबको ये समझ आ चुका होगा कि हमने किस तरह से फोर्सेस को डिवाइड किया फिजिकल ज्योग्राफी के अंडर. तो एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक प्रोसेसेस हमने डिस्कस की. एंडोजेनिक में हमने फोल्ड्स एंड फॉल्ट्स किए, और साथ ही साथ हमने एक्सोजेनिक प्रोसेसेस को डिस्कस किया. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.